قرآن پاک کا 8واں پارہ ولو اننا. اس پارے میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان لوگوں کے سامنے ملائکہ بھی ہم نازل کریں اور مردے ان سے بات کریں، دنیا کی ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کریں، ہر چیز ان سے کلام کریں، تب بھی وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی دنیا میں ایسے منحوس لوگ بھی ہیں جن کو ساری کائنات میں وحدانیت کی دلیلیں ہیں، ساتھ ساتھ پیغمبروں کی آمد اور کتابوں کا نزول، معجزات کا ظاہر کرنا، یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کی فرمائش ہے کہ فرشتے آ کر ان کو سمجھائیں، اگر فرشتے بھی آ کر ان کو سمجھائیں تب بھی وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس طرح اللہ رب العالمین اللہ کے ظالم نافرمانوں کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں. اسی طرح ایک آیت میں اس پارے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اور اسی طرح ہر نبی کے لیے ہم نے ایک دشمن کو بنایا ہے، اور وہ دشمن شیاطین میں سے ہے اور انسانوں میں سے ہے. ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں فرعون تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مقابلے میں نمرود تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے مقابلے میں ان کی قوم تھی. اسی طرح میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس طرح کے مکے کے تاجر آپ سے دشمنی کیا کرتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی، شیاطین بھی پیغمبروں سے دشمنی کرتے. آج بھی پیغمبروں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، ان پیغمبروں پر ایمان لانے والے، ایمان والوں کے دشمن آج بھی زندہ ہیں، جو ایمان والوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو دین و ایمان سے پھیرنا چاہتے ہیں. جس طرح انبیاء علیہ السلام نے ان دشمنوں سے منہ توڑ جواب دیا، اسی طرح آج بھی دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی، توحید کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں آگے جائیں گے، تبھی ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. کسی مرحلے میں ایمان والوں کو چھٹی نہیں ہے، اب کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا قانون ہے. ہر پیغمبر کے مقابلے میں انسانوں میں سے، جنات میں سے اللہ تعالیٰ نے دشمن پیدا کیا ہے، بنایا ہے. تو آج بھی ہمارے مقابلے میں
बहुत सारे लोग दुश्मनी कर रहे हैं। ये चीज भी खुलकर हमारे सामने कुरान से मालूम हो रही है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इस पारे के इसी सूरे के अंदर, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदुव्वन बिगैरि इल्म। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम लोग गाली ना दो उनके माबूदों की जिसकी वो परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं। अगर आप गाली देंगे उनके माबूदों को, वो अनजाने में आपके अल्लाह को गाली देंगे। इसलिए हर मुसलमान को ये बात जरूरी है, मुशरिकीन जिन जिन चीजों को, इंसानों को, जानवरों को, दरख्तों को, पत्थरों को इबादत करते हैं, पूजते हैं, परस्तिश करते हैं, उनमें से किसी चीज को भी गाली ना दें, क्योंकि वो हमारे अल्लाह को गाली देंगे। इसलिए इस्लाम के अंदर दूसरे माबूदों को जो लोग परस्तिश करते हैं, बुरा भला करने से इस्लाम में मना किया गया। इसी तरह एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मुशरिकीन कहते हैं, वलो शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना, अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते, हमारे बाप दादा भी शिरक ना करते। यानी अल्लाह के चाहने ही की वजह से हम लोग जो है ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं इस आयत के, हत्ता ज़ाक़ू बअसना, ये लोग इसी तरह कहते रहेंगे यहां तक कि जब उन पर अजाब आकर पकड़ेगा उस वक्त तक ये ऐसे ही कहते रहेंगे। हालांकि हम दुनिया में देखते हैं अच्छे हालात भी हैं, हवादिसात भी हैं, रात का अंधेरा भी है, दिन की रोशनी भी है, चांद की ठंडक भी है, सूरज की गर्मी भी है, और हल्की सी बारिश भी है, तूफान भी है, फल फूल भी हैं, कांटे भी हैं, शहद की मिठास भी है और फलों की तलखी भी है, बीमारी भी है, सेहत भी है। ये सारी चीजें इंसान के सामने हैं, लेकिन फिर इंसान इन तमाम चीजों के दरमियान राहत और आराम को, सेहत और ठंडक को क्यों इख्तियार करता है? अल्लाह ताला इधर तौहीद को भी बनाए हैं, इधर शिर्क को भी अल्लाह ताला बनाए हैं, पैदा किए हैं, लेकिन इंसानों को इख्तियार दिया गया है। ऐसा नहीं कि या एक आदमी अपने आप को मुश्किलात में डालकर ये कहे कि अल्लाह के चाहने ही की वजह से हम मुश्किलात में हूं, बल्कि अल्लाह ने एक इख्तियार दिया है। हम जो है एक अच्छी चीज को, हक चीज को हम तलाश करें, अपने अकल से सोच समझकर हम जो है एक भली चीज को इख्तियार करें। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत के अंदर, ये लोग मानने वाले नहीं बल्कि अल्लाह के ऊपर इस तरह का इल्जाम डालते ही रहेंगे यहां तक कि जब अल्लाह का अजाब आकर इनको पकड़ेगा तब उनको समझ में आएगा। इसी तरह एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। इस आयत का मफहूम है, ऐ बनी आदम, हर नमाज के वक्त में एक खूबसूरत लिबास को ज़ेबतन करें, पहने। यानी नमाज के वक्त में अल्लाह ताला खूबसूरत लिबास पहनकर अल्लाह के सामने मस्जिद को, नमाज को आने की अल्लाह ताला इसमें हिदायत फरमाते हैं। लिबास सिर्फ सतर को छुपाने के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर जीनत भी हो, ये चीज जो है इस आयत से हमें मालूम होती है।
एक आदमी इस तरह खूबसूरत लिबास पहना है, लेकिन अल्लाह ताला इंसान के अंदर एक मियाना रवि इख्तियार करने के लिए फरमाते हैं दूसरी आयत में, वह लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, जहां उसका ज़ाहिरी लिबास है वहीं उसकी बातिनी लिबास का भी वो ख्याल करे। वो बातिनी लिबास वो तक़वा है जो सबसे बेहतर चीज है। ज़ाहिरी लिबास कपड़ा है जिसको सतर छुपाने के लिए और इसके अंदर खूबसूरती भी हो, जीनत भी हो। यहां पर तफसीर हिदायतुल कुरान के अंदर भी तफसील लिखकर है, लिबास खूबसूरत भी हो जिसको पहनकर इंसान खूबसूरत लगे। ऐसे सूरत में किसी लिबास को इस्लामी लिबास, किसी लिबास को गैर इस्लामी लिबास इस तरह कहने का किसी को इख्तियार नहीं है, क्योंकि अपने मिजाज और माहौल, तर्ज माशरत का मामला है। जिस गांव में, जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं, उस माशरे के हिसाब से हम अच्छा सा अच्छा लिबास पहने, लिबास की खूबसूरती का ख्याल करें और जाहिरी लिबास के साथ साथ अपनी बातिनी लिबास का भी हम ख्याल करना है। कुरान पाक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया है, ये कुरान को हमें पढ़ना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है और कुरान पाक के तफसीली मालूमात अपने अपने उलमा और अइम्मा के जरिए से अपने मसाजिद में इसको शुरू करें। इंशाअल्लाह कुरान पाक जो मुख्तलिफ मौज़ूआत का मजमुआ है, जिसके अंदर इंसान की दुनियावी और उखरवी तमाम हालात की दुरुस्तगी अल्लाह ताला कुरान के जरिए से फरमाना चाहते हैं, इससे बढ़कर अल्लाह की, इससे बढ़कर कोई किताब नहीं हो सकती है। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैब फीह, जिसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। ऐसी किताब को हम खुद पढ़ते हुए और इसके तफसीर और मफाहिम को मालूम कर इस पर अमल करने का अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।